So welcome students, it's our week 4 of our internship session, which is mainly based on concepts of criminal law. And today is our lecture 5, and we are having our guest speaker, Mr. Kasim Nazir Sipra, who is currently working mainly in criminal litigation. He'll be delivering lecture on concept of bail and further topics related to the bail, like kinds of bail, procedural aspects. You all can ask the question at the end of session, and I request you all to please mute your mics, and I request the sir to please continue with the session. Thank you, sir. May I start? Yes, sir. Can you hear me, students? Yes, sir, we can. So today our topic is the concept of bail under criminal law. Basically, the concept of bail is in civil as well as in criminal law is to set an accused on bail in the hands of surety. This concept is either civil or criminal. Surety is taken for his appearance on certain day and place named. Surety is termed as bailer because the person arrested or imprisoned is placed in custody of those who bind themselves or become bailer for his due appearance when required. In this regard, I would respectfully place my reliance upon PLD 1988 Supreme Court page 1. Basically, जो bail का concept है, if I translate into Urdu, वो ये है कि when a case is registered against any person who is an accused in FIR, FIR का concept तो आप लोग जानते होंगे कि FIR is registered under section 154 CRPC when there is a set of accusation against any person and the person who is the complainant, he moved an application before the SHO registered the case against him, and thereafter prosecution starts the investigation, and then they try to arrest an accused. There are two types of bail. One is the pre-arrest bail and second is the post-arrest bail. Pre-arrest bail at the very outset is entirely different from the post-arrest bail because when the case is registered and thereafter accused person got information through reliable sources कि मेरे खिलाफ एक FIR हो गई है and I have to surrender before the prosecution, before the IO and to join the investigation. होता क्या है कि वो बंदा अप्रोच करता है to the court of session or the high court as the case may be, and thereafter under section 498 CRPC he approached to the concerned district where the FIR has been registered, and then he got recorded a statement कि जी पहले उसने under 498 अपनी bail petition फाइल की, फिर his presence is must before the court of session. जब वो पेश हो जाता है कोर्ट के सामने, वो सरेंडर करता है थ्रू प्लीडर और बाय डायरेक्टली, तो वो जाके प्री अरेस्ट बेल में अपने श्योरिटी बॉन्ड दाखिल करवाता है, अपनी अटेंडेंस लगवाता है, एंड देयर आफ्टर ही रिकॉर्डेड स्टेटमेंट बिफोर द आईओ कि जी मैं इस जुर्म के अंदर शरीक नहीं हूँ. Whatever the defense he is going to take, that depends upon the facts of each case, particular circumstances of the case. So the concept of pre-arrest bail is provided in CRPC under section 498 CRPC. And secondly, when you join the investigation, you take some plea. At the time of occurrence, there are different pleas. For example, I am going to suppose कि जी आप कहते हैं जिस रोज वकूआ हुआ उस रोज आप वकूए पर मौजूद नहीं थे, तो दिस इज द कंसेप्ट and this stance which is being taken by the accused कि I was not present over there,
So under the law of evidence, you are going to take a plea of alibi. Plea of alibi is always in the stance कि when you are going to take the responsibility कि जी मैं मौके पर नहीं था, तो you have to prove your defense कि जी on such and such date I was in Islamabad where at such and such place ये बंदे मेरे साथ बैठे हुए थे. आप उनसे एफिडेविट लेते हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं कि इस वक्त मैं इस जगह पर मौजूद था. लिहाजा वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट होके अक्यूज की तरफ चला जाता है. तो प्री अरेस्ट बेल में आईओ उन चीज़ों को वेरीफाई करता है कि जी मैंने जिन मकामात की इसमें निशानदेही की है, आई हैव वेरीफाइड द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज एंड देयर आफ्टर आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि जी अब इस बंदे का गुड केस है, इस ये मौके पर नहीं था. तो देन क्या होता है, उसकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो कंफर्म हो जाती है और वो छोटी बांड कोर्ट में दाखिल करवा देता है. ये एक एग्जांपल दी है. देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल व्हिच कैन बी pushed at this moment, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ proximity of time I couldn't explain the other example. Now अब आप दूसरी तरफ आ जाएं कि पोस्ट अरेस्ट बेल जो होती है कि एफआईआर होने के बाद अंडर सेक्शन 154 एक बंदा जो है पुलिस इसको अरेस्ट कर सकती है. अब इसमें देयर आर टू काइंड्स कि एक वो होता है जिसमें विद परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस. इन कॉग्निजेबल केसेस जो होते हैं उनके अंदर आप डायरेक्टली पुलिस जाती है, वारंट गिरफ्तारी उनके पास होते हैं और वो जाके उनको गिरफ्तार कर लेती है. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, उसमें वारंट की जरूरत नहीं होती. इस सिचुएशन में बंदा अरेस्ट हो गया, पुलिस उसको अपना रिमांड पे पेश करती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी कि accusations are well founded, so and so recovery is required to be effected from this person for the purpose of investigation. Area magistrate granted physical remand of that particular accused for the purpose of recovery or for the purpose of investigation. That depends upon the situation and the facts of the each case. So thereafter उसका रिमांड, मैक्सिमम रिमांड जो है वो कोड 167 के तहत उसको 14 डेज तक दे सकती है. एंड देयर आफ्टर इफ सम मटेरियल इज फाउंडेड अगेंस्ट हिम ही इज सेंट टू जुडिशियल लॉकअप, जेल उसको भिजवा दिया जाता है. अगर देयर इज इनसफिशिएंट मटेरियल अगेंस्ट हिम तो पुलिस हैज पावर अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी कि उसको डिस्चार्ज कर दे. अब इस कंसेप्ट के अंदर पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है. मैं पोस्ट अरेस्ट बेल की तरफ जाऊंगा, वो एक एग्जांपल 169 की मैंने दी. पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है कि इस बंदे के खिलाफ ज़बानी शहादत भी मौजूद है, इससे रिकवरी भी अफेक्ट हुई है, लिहाजा अब इसकी जो बेल है वो आफ्टर अरेस्ट फाइल होगी. दैट इज टू बी डेल्ट अंडर सेक्शन 497 सब क्लास 2 ऑफ द सीआरपीसी. अब वो बंदा थ्रू प्लीडर जेल से वकालतनामा भिजवाता है और अपना प्लीडर मुकर्रर करता है किसी भी वकील को या किसी ऑथोराइज पर्सन को, तो वो उसको प्लीड करता है इन द कोर्ट ऑफ सेशन. इफ द सेम इज ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन तो कोर्ट ऑफ सेशन में पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल होगी. अगर दैट ऑफेंस इज ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट तो फिर वो बेल मजिस्ट्रेट के पास दाखिल की जाएगी और वहां पर वो अपनी जो ग्राउंड्स ऑफ बेल हैं वो लेगा. जो ग्राउंड्स हैं वो उनमें से मैं आपके साथ कुछ मेंशन कर देता हूं कि किन किन ग्राउंड्स पर जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो हो सकती है. इस सिचुएशन में एक होती है, उस तरफ मैं बाद में जाऊंगा, एक प्रोटेक्टिव बेल होती है. पहले मैं आपको ग्राउंड्स बता देता हूं कि कोई जमानत लेने के लिए जब जाता है, फॉर एग्जांपल खातून है तो शी इज गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन दिस कंटेस्ट के जी अगर कोई खातून प्रेग्नेंट खातून है तो उसको अंडर द लॉ बेल ग्रांट की जानी चाहिए, या उसके साथ कोई सकलिंग बेबी है तो उसको बेल ग्रांट हो जाती है पोस्ट अरेस्ट बेल. तो इस सिचुएशन में ये भी एक ग्राउंड है पोस्ट अरेस्ट बेल का फॉर स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स. एंड सेकेंडली मेडिकल ग्राउंड होता है कि एक बंदा है पोस्ट अरेस्ट बेल में, वो अंदर है अपना केस एफआईआर में, उसके अगेंस्ट हीनियस एलिगेशंस हैं लेकिन वो बीमार हो गया जेल में, एंड इन जेल देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन अक्यूज. तो वो एप्लीकेशन मूव करता है कि जी मैं यहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो मैं जो है मुझे बेल ग्रांट की जाए, मैं जाके बाहर जाके किसी हॉस्पिटल में
अपना इलाज करवा सकूं. तो दिस इज मेडिकल ग्राउंड. Criteria for grant of bail to an accused in non-bailable cases on medical ground is that the sickness or ailment which the accused is suffering is such that it cannot be properly treated within the jail premises, and that some specialized treatment is needed, and his continued detention in jail is likely to affect the capacity or hazards to the life. इस मैं एक जजमेंट आपको बता देता हूँ. 2000 SCMR 107 PLD 1995 Supreme Court page 58, 1998 SCMR page 1065, and there are many persons in the society who are suffering from the heart ailment, diabetes and other leading to normal life. तो इस सिचुएशन में कोर्ट कंसिडर करती है और मेडिकल डॉक्टर से ओपिनियन भी ले सकती है. मेडिकल बोर्ड भी बिठाया जा सकता है कि ये जो बंदा एक प्ली ले रहा है कि मैं फर्ज कर ले मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरा जेल में इलाज पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट मेडिकल से उस अक्यूज के बारे में मेडिकल बोर्ड बिठा के उसका ओपिनियन ले सकती है कि क्या इसकी इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी गैर सरकारी हॉस्पिटल में इसको बेल ग्रांट की जाए ताकि इसकी जिंदगी को जो खतरा लाक है थ्रू एलमेंट वो रिड्रेस हो सके. तो इस सूरत हाल में कोर्ट के ऊपर मुनसर होता है कि कोर्ट कौन सा तरीका अडॉप्ट करती है या डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट वो नेक्स्ट करता है बेल पिटीशन के साथ उसके ऊपर भी रिलाई करके उसको बेल ग्रांट की जा सकती है. तो दिस वाज द मेडिकल ग्राउंड. नाउ नेक्स्ट ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ बेल कि कोई बंदा ओल्ड एज है और किसी इन्फर्मिटी में मुब्तला है. तो द वर्ड इन्फर्म मीन्स द फीबल, सिक, फ्रेल, अनसुटेबल एंड द वेल्थ ऑफ द वीक हेल्थ ऑफ द पर्सन. उसकी एज मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसकी एज 70 और 75 है तो वो जेल में पड़ा हुआ है तो उसकी एब्सकॉन्शन के कोई चांसेस नहीं है, तो वो इस ग्राउंड के ऊपर कोर्ट से बेल सीख कर सकता है कि मेरी ओवर एज काफ़ी हो चुकी है, मैं ज़ईफ़ अल उम्र हूँ, तो मेरे साथ कोर्ट जो है वो इसमें इस ग्राउंड को कंसिडर करते हुए मुझे बेल ग्रांट की जाए. अब बेल का कंसेप्ट जैसे मैंने शुरू में बताया वो बड़ा सिंपल था कि एक बंदे की जो कस्टडी है वो श्योरिटी के हाथ में दी जाती है और श्योरिटी उसका पाबंद होता है कि व्हेन एवर द कोर्ट रिक्वायर्ड इस बंदे को अगर वो डिसअपीयर हो जाए तो वो उसको लाकर पेश करे. अगर वो पेश नहीं होता तो वो जो श्योरिटी दाखिल करवाता है, श्योरिटी जिसको बेल बॉन्ड जो बंदा दाखिल कराता है उसके बिहाफ पे उसकी श्योरिटी फॉरफिट कर ली जाती है कोर्ट उसको बुलाने के लिए उसकी तलबी के लिए मुलजम की. अब अगला ग्राउंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि एक बंदे के ऊपर FIR हुई है, एक वकूआ हुआ है, दो फरीकैन आपस में लड़ पड़े एंड देयर आफ्टर दूसरा फरीक भी कहता है कि मेरे साथ भी ज्यादती है, मुझे भी इन्होंने मारा पीटा है, वो कोई बंदा जख्मी हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो देयर आफ्टर वो अपनी एप्लीकेशन मूव करता है बिफोर द कंसर्न पुलिस स्टेशन. तो वो क्रॉस वर्जन केस हो जाता है कि एक पार्टी की FIR हुई फिर दूसरे का भी क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड हुआ. तो दिस इज अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी कि जी देयर इज नीड टू प्रोब इनटू द मैटर कि देयर आर टू वर्जन ऑफ द केस. वन इज सेइंग कौन सी पार्टी राइट पे है कौन सी पार्टी रॉन्ग पे है. तो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कंसिडर करती है कि इस सिचुएशन में फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है तो मेयर उसमें counter case registered by the accused party in respect of the same occurrence, accused party also suffering injury will bring the case of further inquiries. In this regard, I would respectfully place my reliance upon 1997 MLD 1208 PLD 1972 Supreme Court page 81. इसमें उन्होंने कहा कि जब क्रॉस वर्जन आ गया रिकॉर्ड पे तो फिर उस सिचुएशन में उसको बेल ग्रांट की जाएगी, उसको फॉर अनलिमिटेड पीरियड जेल में डिटेन नहीं किया जाएगा. अब इसके अलावा एक और ग्राउंड है पोस्ट रेस्ट बेल में कि बंदा 1 साल से जेल में पड़ा हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन ने चालान सबमिट हो चुका है लेकिन देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल विद द प्रोसिक्यूशन. अब आप स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर उससे बेल जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि जी मुझे बेल ग्रांट की जाए. आई एम इन बिहाइंड द बार फॉर द लास्ट 1 year or 2 years and there is no progress in the trial. तो in this ground post arrest bail जो है वो ग्रांट की जा सकती है. नेक्स्ट है जो मैंने शुरू में आपको बताया प्ली ऑफ एलिबाई भी एक आपका ग्राउंड है और एक इसमें जो गोल्डन प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर वो है बेनिफिट ऑफ डाउट.
occurrence हुआ, there was the person who was present at the place of occurrence but he didn't play any role over there, और वहां पे देयर इज अ डाउटफुल कैरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ दैट अक्यूज कि जी ये बंदा तो मौके पे मौजूद था लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, इसकी मेयर प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ अकरेंस इज डाउटफुल कि जी क्या इसने कोई अबैटमेंट की, क्या इसने कोई ललकारा मारा, क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, मर्डर केसेस की, कोई ललकारा मारा, किसी को असिस्ट किया अंडर सेक्शन 180 109 अबैटमेंट 107 में इसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, किसी को इंस्टिगेट किया, तो इसमें उसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट है कोर्ट उसको कंसिडर करती है एट द टाइम ऑफ डिसीजन ऑफ द बेल एप्लीकेशन। पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन हुई होती हैं उसमें भी उसका अगर किरदार जो है वो डाउटफुल रहा है तो बेनिफिट ऑफ डाउट एट द टाइम ऑफ ट्रायल भी बेनिफिट देता है और एट द टाइम ऑफ बेल स्टेज भी वो बेनिफिट उसको एक्सटेंड किया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी बेनिफिट ऑफ डाउट उसको बेल जो है वो ग्रांट की जाती है। इसके अलावा डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि ऑन विच ग्राउंड पर्सन इज सीकिंग बेल। तो ये पोस्ट अरेस्ट बेल का जो ब्रीफ जो कंसेप्ट था जनरल सा मैंने आपके सामने रखा। एक इसमें और बड़ा अहम ग्राउंड है कि मिसाल के तौर पे एक एफआईआर के अंदर देर आर 3 अक्यूज एंड एवरी अक्यूज हैज द सेम रोल। फॉर एग्जांपल कि एक मर्डर केस के अंदर 3 मुल्जमान हैं, एक मुल्जम जो है उसने उसके हाथ में पिस्टल है, उसने दूसरे के हाथ में भी पिस्टल है, एक ने फायर मारा दूसरे ने डंडा मारा, तो कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 पीपीसी एंड 149 पीपीसी कॉमन बाय शेयरिंग कॉमन इंटेंशन उन्होंने एक बंदे का मर्डर किया। देयर आफ्टर एक बंदे की बेल हो जाती है और दूसरे बंदे की बेल जो है इस बेस पे होगी कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने principle of consistency is the basic principle of administration of justice and it has to be acted upon not only at bail stage but in the trial. Principle of consistency applies in bail application. Co-accused gets a right to the concession of principal accused if the bail is allowed to the other co-accused. In this regard, मैं इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 46 सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसके ऊपर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के ऊपर एक अपना जो है जजमेंट पास कर रखी है। और आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का ये कहता है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन इन द आइज ऑफ लॉ, सबके लिए बराबर होती है। इसलिए इन द लाइट ऑफ द बेल एप्लीकेशन व्हिच वाज ग्रांटेड टू द अदर अक्यूज्ड द प्रेजेंट अक्यूज्ड इज आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द बेल। इसको कहते हैं हम कि एक बंदे को अगर जमानत मिल गई तो दूसरे बंदे को एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट की जाए इफ हिज रोल इज सेम। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है ये भी एप्लीकेबल है इन पोस्ट अरेस्ट बेल। ये सीधा सीधा चंद ग्राउंड थे जो मैंने पोस्ट अरेस्ट बेल के आपके सामने रखे। अब एक और काइंड है बेल की, प्री अरेस्ट बेल का पहले हमने आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट की अभी 2021 में काफ़ी सारी जजमेंट्स आई हैं तो वो कहते हैं कि प्री अरेस्ट बेल का जो स्कोप है वो बहुत थोड़ा है और एवरी रन ऑफ मिल के केसेस में जो है वो बेल ग्रांट नहीं की जानी चाहिए कि वो इसका मतलब ये है कि अगर अक्यूज को आप प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर देते हैं तो वो हैम्पर करेगा इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को, उसको ये मौके ही ना फराम किया जाए कि वो जाके मैनेज करे सिचुएशंस को, पुलिस वालों के साथ मिल के मिली भगत करके और वहां पे साजबात करके इन्वेस्टिगेशन के होने से पहले ही जो एविडेंस है उसको स्पाइल करने की कोशिश करता है अक्यूज एट द सर आपका माइक म्यूट हो गया है, अभी तो अनम्यूट करते हैं। जी आवाज आ रही? जी सर। कंटिन्यू करें। यस सर, थैंक यू। अब आज हैं एक एक इनलाइटेंड सा एक एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ बेल का, मिसाल के तौर पे जिसको हम आम तौर पे प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं, ट्रांजिटरी बेल कहते हैं। प्री अरेस्ट बेल का आपको मैंने ब्रीफली एक कंसेप्ट दिया, पोस्ट अरेस्ट बेल का कंसेप्ट दिया, उसके ग्राउंड बताए, और अब मैं थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोटेक्टिव बेल। अब जो प्रोटेक्टिव बेल है इसको
जैसे कि फ्रॉम द नेम दिस इज अ प्रोटेक्टिव बेल, मेरे अगेंस्ट कोई एलिगेशन, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है इस्लामाबाद में या रावलपिंडी के अंदर, मैं पेशावर गया हुआ हूँ किसी काम के सिलसिले में, और मुझे अप्रीहेंशन है कि मुझे जो ही इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करता हूँ अंडर सेक्शन 498 कि जी मुझे जो है इस वक्त तक बेल ग्रांट की जाए कि मैं अपने मुतलका फोरम, मुतलका डिस्ट्रिक्ट तक अप्रोच कर सकूं, और वहां से जाके फिर मैं अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा के सरेंडर करके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकूं। तो दिस इज अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिव बेल। और ये प्रोटेक्टिव बेल में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रोटेक्टिव बेल के अंदर कभी भी मेरिट्स ऑफ द केस को डिस्कस नहीं किया जाता, ऑफेंस को सिर्फ उसमें मेंशन किया जाता है, लेकिन उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको डिस्कस इसलिए नहीं किया जाता कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो मेरिट पे जाके बेल आर्ग्यू होगी वो उसको अफेक्ट ना करे। लिहाजा ओनली जस्ट टू प्रोवाइड एन असिस्टेंस टू अक्यूज टू सरेंडर विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस फ्रॉम हिज नेटिव डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे उसके खिलाफ जो है एफआईआर हुई है, वो वहां पर जाकर अप्रोच कर सके। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिव बेल विच इज प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी, बट दिस स्कोप इज नाउ वेरी लिमिटेड कि लोगों ने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। कि मिसाल के तौर पे पिंडी में ऑफेंस हुआ, भावलपुर में जाके बेल करवा ली, 2 महीने का टाइम गेन कर लिया। इसका मतलब यह है कि टू हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन, टू डिले द इन्वेस्टिगेशन, टू टैम्पर विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, this concept has been deprecated by the Honorable Supreme Court of Pakistan in several judgments के जी रेयर केसेस में। अब जो कंसेप्ट जो प्रैक्टिस में अभी रिसेंटली मैंने एक पेशावर हाई कोर्ट में बेल करवाई है, तो वो कहते हैं यू हैव टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोटेक्टिव बेल, व्हाई यू आर नॉट अप्रोचिंग योर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, कि आप अपने जाके इलाके में बेल करवा लें। अब हमने वहां पे एक सर्टिफिकेट देना होता है कि मैं इस वजह से आउट ऑफ प्रोविंस या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दूसरी जगह से बेल करवा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। यू हैव टू एक्सप्लेन द सिचुएशन अंडर व्हाट कैपेसिटी यू आर अप्रोचिंग टू द हाई कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिव बेल। तो ये प्रोटेक्टिव बेल का थोड़ा सा ब्रीफ सा जो बैकग्राउंड है या इसका जो कंसेप्ट दौरे हाजिर में चल रहा है, आई एम गोइंग टू इनिशिएट अपना इसके ऊपर आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट फ्यू पॉइंट। अब जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है कंडीशनल बेल। आपने प्री अरेस्ट बेल के बारे में जानकारी की, आपने पोस्ट अरेस्ट बेल के बारे में जाना, आपने ट्रांजेंटरी बेल के बारे में, प्रोटेक्टिव बेल जिसको कहते हैं, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन ब्रीफली दिया। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई कुडंट गो इन डिटेल। जो कंडीशनल बेल है वो ये है कि एक बंदा, उसके ऊपर एफआईआर हो गई, वो बिहाइंड द बार चला गया और पीछे से उसके वारसान को पता चला, वो आके कंप्लेनेंट के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसने किसी के पैसे देने, तो मैंने अभी एक रिसेंटली एक केस किया है इस्लामाबाद में। उसमें ये हुआ कि एक बंदे ने 1,96,00,000 रुपया उस बंदे का कंप्लेनेंट का देना था। उसकी बेल प्री अरेस्ट पहले हुई थी, वो बेल कैंसिल हो गई। जब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ड्यूरिंग कस्टडी, हमारा उसके साथ कंप्रोमाइज हुआ। वो कंप्रोमाइज सेटलमेंट एग्रीमेंट हमने लिखा, उसमें हम हमारी अमाउंट के अगेंस्ट उसने हमें चेक दिए, और वो चेक की जो डिटेल है वो हमने सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर लिखी कि इन शराइत के ऊपर ये 30-30 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से हमें हमारी पेमेंट वापस करेगा। अगर इसका कोई चेक डिसऑनर हो जाता है जो इसने हमें दिया है, तो मेरे पास बीइंग अ कंप्लेनेंट ऑफ द केस ये राइट है कि मैं उसकी बेल कैंसिलेशन फाइल करूं। अब बेल कैंसिलेशन का जो लॉ है इन सीआरपीसी विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी सब क्लास 5। अब कैंसिलेशन के ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं कि अगर वो प्रोसिक्यूशन के केस को हैम्पर करेगा, उसके चांसेस हैं कि वो एब्सकॉन्डर हो जाएगा, भाग जाएगा, तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। या वो बेल को मिस यूज करता है किसी भी तरीके से, तो उसकी बेल कैंसिल की जा सकती है। लेकिन कंडीशनल बेल जो है, इट सेल्फ कंडीशन इज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर कि इस कंडीशन के ऊपर इसको बेल ग्रांट दी गई थी। अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो अंडर जो कैंसिलेशन हम सीख करेंगे वो 497 सब क्लास 5 में ही सीख करेंगे, लेकिन कंडीशन उसके अंदर वो मेंशन करेंगे जिसके तहत उसने वो बेल हासिल कर रखी है। लिहाजा ये कंडीशनल बेल का जो कंसेप्ट है दैट इज इन प्रैक्टिस
اور اس میں بے شمار لوگوں کے جو معاملات ہیں اس میں سیٹل ہو جاتے ہیں کنڈیشنل بیل کے اندر ہی. ادروائز پھر اس کی کنڈیشن جو ایکسپریسلی پرووائڈڈ ہے اگر اورل ہے تو آرڈر ویسے تو کورٹ میں جو جب اس کو کنڈیشنل بیل گرانٹ کی جاتی ہے تو آرڈر کے اندر لکھا جاتا ہے. تو کنڈیشنل بیل کا کنسیپٹ جو بریفلی میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے. اب ایک لاسٹ میں ایک بڑا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیل ان بیلیبل اوفینسز کہ بیل جو ہے ایک تو آپ کو نان بیلیبل اوفینسز میں نے جب بات کی یہ میں نے بیل لیبل والی بات آخر میں اس لیے رکھی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ ایک اوفینس ہے نان بیلیبل ایک ہے بیلیبل. بیلیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کر لیں آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوگی اور آپ کے اوپر جو پولیس نے ایف آئی آر دی ہے وہ 420 کی دے دی ہے پی پی سی. 420 کیا ہے whoever induced someone for the delivery of property for the purpose of cheating کہ اس نے آپ کو اکسایا کہ آپ یہ پراپرٹی خریدیں اور آپ کو پتہ ہے بیچنے والے کو کہ یہ ڈیفیکٹو پراپرٹی ہے اور اس نے آپ کو انڈیوس کیا ہے تو وہ پراپرٹی خرید لیتا ہے اور بعد میں اس بندے کو نقصان ہوتا ہے. تو شیڈول کے اندر اس اوفینس کو بیلیبل قرار دیا گیا ہے حالانکہ انڈر پی پی سی کے اندر اس کی 7 ایئر پریزنمنٹ پرووائڈڈ ہے. جو سینٹینس ہے اس کی 7 سال ہے. 406 جو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا جو اوفینس ہے اس کی بھی 7 سال سزا ہے لیکن شیڈول میں وہ نان بیلیبل ہے یہ بیلیبل ہے تو سزائیں دونوں کی برابر ہیں. اب جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں پٹیشن فائل کرتے ہیں تو آپ کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ سر یہ جو اوفینس ہے یہ بیلیبل ہے لہٰذا اس میں مجھے سمپل شورٹی کا آرڈر فرمایا جائے. اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پہ. تو وہ کورٹ آپ کو جو بھی شورٹی بانڈ کا آرڈر پاس کرتی ہے آپ ڈائریکٹلی وداؤٹ آرگیونگ یور کیس سم ہاؤ یو ہیو ٹو ریڈ دی ایف آئی آر کے اندر واٹ سچویشن دس کیس واز رجسٹرڈ اینڈ دیر آفٹر یو آر اپروچنگ کہ مجھے پولیس گرفتار کر کے. اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بیلیبل اوفینس تو ہے لیکن پولیس آپ کو اریسٹ کر لیتی ہے. پولیس آپ کو اریسٹ کرتی ہے آپ اپنے پلیڈر کو اپروچ کرتے ہیں پلیڈر آپ کا جو ہے وہ آپ کی بیل فائل کرتا ہے پولیس آپ کو جیل بھیج دیتی ہے تو آپ فوری طور پہ شورٹی بانڈ داخل کروا کے متعلقہ کورٹ میں علاقہ مجسٹریٹ ہے یا سیشن کورٹ ہے آپ اپنی روب کار جیل میں بھجوا دیتے ہیں. جیل سے آپ فوری طور پر پھر ریلیز ہو جاتے ہیں. تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی میں آپ کو اس میں اور بات بتاؤں گا. ابھی 2021 میں ایک ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی کہ جب بندہ ریمانڈ پہ پیش کیا جاتا ہے تو مجسٹریٹ کو امپاورڈ کیا گیا ہے کہ وہ فرام دی کنٹینٹس آف دی اپلیکیشن اگر پولیس نے دفعات کا غلط اندراج کی ہے تو وہ اس میں دفعات ایڈ بھی کر سکتا ہے اور دفعات کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ مجسٹریٹ جو ایریا مجسٹریٹ ہوتا ہے جو ریمانڈ دیتا ہے اکیوز کو وہ اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ دے سکتا ہے پولیس کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے. چلان جو ہے وہ 173 کے تحت کورٹ میں داخل کیا جاتا ہے جب انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے. تو اس سارے سیناریو کے اندر آپ نے ٹوٹل جو نٹ شیل وہ یہ جو میں آپ کو بریفلی بتاؤں کہ پری اریسٹ بیل کیا ہے پوسٹ اریسٹ بیل کیا ہے پروٹیکٹیو بیل کیا ہے ٹرانزٹری بیل کیا ہے بیلیبل جو کنڈیشنل بیل کیا ہے بیل ان بیلیبل کا کنسیپٹ آپ کو بتایا. تو یہ کائنڈز آف بیل ہیں جو عام طور پہ ہمارے سی آر پی سی میں جو جن کی پروویژن پرووائڈڈ ہیں ان کے اوپر ہم پریکٹس میں روزمرہ کے معاملات میں ایکسرسائز کرتے ہیں. اب اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہے تو یو میں آپ